pause for a moment, take a deep breath and relax. क्योंकि if you're able to access this YouTube video right now, then you are among the top 10% lucky active YouTube users of India. So no need to panic out right now and start scribbling off your papers unless and until you have an exam in coming couple of days and you know what to actually do. If not, then analyze what you were doing in the past few days. Where was your time actually going, and what are all the activities that you actually want to do in the coming couple of days? Write them all down in a notebook, and this will give you a lot of mental clarity. हमने जो पॉइंट्स इस वीडियो में डिस्कस किए ना, वो तुम्हारे टाइम को एफिशिएंटली मैनेज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और तुम्हारी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को मेनी फोल्ड्स इंक्रीज़ कर सकते हैं. सो वीडियो पूरा देखना, ध्यान से देखना, और इसी के साथ लेट्स बिगिन. Now, if you are an Indian college student like me, then you might be troubled by a lot of quizzes, assignments, club activities, classes popping in onto your computer screen day in and day out. Now, managing all those tasks and allocating time for each one of them on every single day is a tough job to do. But if you plan in advance, it gives you a lot of mental clarity of what to do when, and it saves your time and effort that you waste into thinking what to do next after each completed task. It also helps you from falling into the trap of not doing the things that have a deadline associated to it. For example, as an engineering college student, let's say I want to learn about entrepreneurship this year, but probability of me doing the task regularly is very less because of low urgency and low accountability. But if I have a planned routine written in front of me and dedicated time slot for each of the tasks that I want to do every day, then the probability of me doing those tasks really increases a lot. Now, as we know that planning our day is really important, let's learn how to do that. तो अब हम लोगों ने समझ लिया है कि टाइम टेबल को बनाना कितना ज़रूरी होता है. तो अब ध्यान देते हैं एक ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल के ऊपर जिसको अगर नहीं बनाया तो तुम्हारा टाइम टेबल 3 या 4 दिन तक काम करेगा, फिर 5वें दिन उसकी इंटेंसिटी अपने आप डाउन हो जाएगी. ये मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है लोगों के साथ. तो उस रूल का नाम है फ्लो रूल. ठीक है, हो सकता है आप लोगों ने सुन रखा हो इसको, बट जिन्होंने नहीं सुन रखा है उनके लिए ये है. बेसिकली इस रूल का मतलब ये है ना कि जैसे जैसे आपका दिन बीतता जाए आपके काम की इंटेंसिटी कम होनी चाहिए. ठीक है, सबसे ज़्यादा इंटेंस या सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला काम आप सबसे पहले निपटा लो. तो देखो इससे बेसिकली होगा ये ना कि जैसे जैसे दिन बीतेगा अपनी एनर्जी कम होगी, ये तो रूल है. अब जैसे जैसे अपनी एनर्जी कम होगी अपने काम की इंटेंसिटी भी कम होते जाएगी. तो इससे क्या होगा, अपने रूटीन को फॉलो करना बहुत आसान हो जाएगा अपने लिए. अब देखो यार, पहले दिन तो काम को प्रायोरिटाइज़ करने में थोड़ा टाइम लगेगा तुम्हें. पहले तो थोड़ा एनालाइज़ करना पड़ेगा तुम्हें खुद को कि तुम्हारा कौन सा काम सबसे ऊपर रहना चाहिए और कौन सा काम नीचे रहना चाहिए. लेकिन इन द लॉन्गर रन इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है तुम्हें. सो टिप नंबर 2, फॉलो द फ्लो रूल. Heard a lot of people talking about the productivity, the effectiveness of the tasks that have been done in the first 2 hours of the day, because it's simply because you have the maximum amount of energy stored in during that span of time. So wherever you channelize that energy into decides the entire flow of your day. So if you stay away from distraction, things that can wait for the rest of the day, and channelize your energy into really important things, this boosts your productivity and sets up the overall tone for the day. Now let's learn how to enhance this entire experience. सो टाइम फॉर अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, डेडलाइन. अब डेडलाइन के मीनिंग को हम लोग बहुत गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, जबकि डेडलाइन इज़ अ पॉजिटिव थिंग. अब तुमने बहुत बार देखा हो कि अगर हम किसी काम को करते हैं तो स्टार्टिंग में हमारी एनर्जी उसमें बहुत ज़्यादा होती है, बट एंड आते आते उसके में हमारी एनर्जी अपने आप कम होने लगती है. डेडलाइन से इस चीज़ से बचाया जा सकता है. देखो डेडलाइन से होता ही है बेसिकली कि अपने दिमाग में एक क्लॉक टिक होते रहता है कि इस काम को अपने को इससे पहले ख़त्म करना है. तो उससे एक कंटिन्यूस फ्लो ऑफ एक्शन बनता है. बेसिकली होता ही है कि हम लोग अगर बीच में एक ब्रेक आ जाए ना तो उसके बाद फिर किसी काम को वापस से स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है. डेडलाइन से इस ब्रेक से बचा जा सकता है. डेडलाइन एक कंटिन्यूस फ्लो ऑफ एक्शन डेवलप करता है. अब डेडलाइन बनाने से पहले अपने को एक जो बात ध्यान में रखना है वो ये है कि या तो डेडलाइन बहुत ज़्यादा लंबा होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा छोटा. अगर डेडलाइन बहुत ज़्यादा लंबा होगा, अगर तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा टाइम दोगे किसी काम के लिए, तो फिर दूसरे वर्क्स उस टाइम को फिल करना स्टार्ट करते हैं. दिस इज़ कॉल्ड पार्किंसंस लॉ.
इसको गूगल पे सर्च कर सकते हो। और ऑन द अदर हैंड अगर तुम बहुत छोटा डेडलाइन रखते हो ना, तो फिर तुम अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा हार्श हो रहे हो, अगर वो काम कंप्लीट नहीं होगा तो तुम डीमोटिवेटेड फील करने वाले हो। तो इससे बचने के लिए डेडलाइन बनाने के लिए एक स्वीट स्पॉट को हिट करना बहुत ज़रूरी है। अभी आएगा तो एक्सपीरियंस के साथ, बट वंस यू गेट देयर एवरीथिंग विल बी ईजियर। अब डेडलाइन को अचीव करने के लिए तुम बहुत सारे ट्रिक्स लगा सकते हो। जैसे तुम पहले तो अपने गूगल कैलेंडर में सारे डेडलाइन को एक बार लिख दो, ताकि तुम रिमाइंडेड रहो हमेशा कि किस चीज़ की डेडलाइन कब आने वाली, तुम बार बार देख सको उसको। और एक और अच्छी ट्रिक ये है कि तुम किसी पर्सन को अपने लिए अकाउंटेबल रख सकते हो, अपने किसी फ्रेंड को ही रख सकते हो। सो लेट्स से कि तुम्हें मैथ्स का चैप्टर 1 कंप्लीट करना है, तो तुमने एक डेडलाइन स्पेसिफाई किया उसके लिए, अपने फ्रेंड को भी साथ में लो। और अगर तुम उस डेडलाइन पे उस काम को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, तो फिर तुम अपने तरफ से थोड़ा सा अपने आप को पनिशमेंट दो, तुम अपने फ्रेंड का फ़ोन रिचार्ज कर दो। मुझे पता है कि ये बहुत ज़्यादा सिली साउंड करता है, बट इट वर्क्स एवरी टाइम, सो एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई। सो अनदर इम्पॉर्टेंट टिप, create smart deadlines for every work. Now, sitting for a fixed amount of time on a single task and just doing that single task in the time frame and not focusing on everything that you have to do in your entire to-do list helps you increase your overall efficiency and the quality of work that you bring on the table. Dividing your day into slots of time that you're comfortable with and allocating tasks to each and every time frame and just focusing on that single tasks increases your overall efficiency, productivity and accountability for a certain task. You can just use the Forest app for this purpose, through which you can plant real trees on earth just by focusing on your work. Now that puts an impact in the society. तो यार अब बात करते हैं एक ऐसे वर्ड पे जो कि सुनने में तो बहुत छोटा लगता है, बट बहुत ही डीप इम्पोर्टेंस रखता है अपने लाइफ में, हैबिट्स, आदत। अब अगर यह तुम्हें नहीं पता है तो किसी भी आदत को डेवलप करने के लिए ना उसका स्टार्टिंग के 21 डेज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। मतलब अगर स्टार्टिंग के 21 डेज़ तुमने किसी चीज़ को फॉलो कर लिया तो उसके बाद उस चीज़ को फॉलो करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन उस काम को एक हैबिट की तरह ट्रीट करने लगता है। तो किसी भी काम को अपनी हैबिट बनाने के लिए ना उसे लगातार 21 डेज़ फॉलो करो। अब इस चीज़ को ट्रैक करने के लिए अपने पास बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं, या तो प्ले स्टोर पे चले जाओ या ऐप स्टोर पे चले जाओ, बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं, हैबिट्स के नाम से ही आते हैं, जो आपके 21 डेज़ को ट्रैक करते हैं। ये बहुत ही एक अच्छा तरीका है जिससे आप अपने हैबिट्स को ट्रैक कर सकते हो। और अगर आपको डाउनलोड कुछ नहीं भी करना तो एक पेपर पे सीधे चेकलिस्ट बनाओ और 21 डेज़ तक उसको फॉलो करो। उसके बाद उस पर्टिकुलर काम को करना बहुत आसान हो जाने वाला है। सो रूल नंबर 6, टू मेक समथिंग अ हैबिट, फॉलो इट कंसेक्यूटिवली फॉर 21 डेज़। Now, after you learned how important habits are in your overall productivity, learning how to actually build good habits and break the existing bad ones is really important. The environment where you work or study, basically your room, plays a very significant role in breaking and making of habits. Let's take an example. Say you want to develop a habit of reading non-fiction books. Now, the initial days are very interesting. The first couple of days, when you buy a book, reading that book is very satisfying. But once you lose your enthusiasm, continuing or getting through that habit is really tough. Now, how can you fix that? With a simple change in your environment. What you need to do is keep your book aside your bed whenever you wake up, and do not take your phone to the bed while you go to sleep. By this very small change, whenever you go on bed, you have a book aside you and you don't have any other distraction. So the only thing you are going to do on your bed is simply reading that book. Now, because of this slight environmental change, you are able to build 3 significant changes in your life. First, you are able to make a habit of reading book that was your primary target. Second, you stopped going through social media before sleep, or you stopped the consumption of your phone before sleep. Third, you were able to build a great sleep cycle, because after reading your book you feel too much sleepy, right? Now, this was just a simple example how small fixes in your environment can actually play significant role in your life. And you can do this with various aspects and various other habits that you want to build. Say if you want to build a good habit, the only thing that you need to think about is how to make the process easy and satisfying. And if you want to break a certain habit, break certain bad habit, the only thing that you need to think is how to make that the process really difficult and the outcome really unsatisfactory. If you want to go in depth in the role of habits and environment in your life
and overall productivity, then go through the book Atomic Habits written by James Clear. We brought all those insights and points about habits and productivity after reading that book completely. Links in the description. And if you want, we can also make a book summary of the book Atomic Habits. तो देखो यार, जैसे ही हम लोग कॉलेज में एंट्री मारते हैं ना, तो अपने सामने ऐसा बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आती है, बहुत सारे क्लब्स आते हैं, मीटिंग्स आती है, और हम अपने आप को अचानक से ही बहुत ज़्यादा बिज़ी कर लेते हैं। तो मैं रिसेंटली एक बुक पढ़ रहा था जिसमें इसके बारे में लिखा हुआ था कि अगर हम अपने आप को एक बार में बहुत सारी चीज़ों में बिज़ी करते हैं ना, तो हमारे इंटेंसिटी पर वर्क डाउन हो जाती है। अब इसे होता क्या है कि एट द एंड ये हो सकता है कि हम एक काम भी सही से ना कर पाए, हमारे दिमाग से एक जो अपना अल्टीमेट गोल होता है वो बुला दिया जाता है। तो इससे बचने के लिए उस बुक में एक तरीका था कि हर वीक पे क्या करो ना, कि एक बजट बनाओ कि आपको इतनी ही चीज़ों को यस बोलना है, बाकी सबको नो बोलना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक बजट बनाया कि आपको 15 चीज़ों को हाँ बोलना है, बाकी सबको ना बोलना है, तो अगर आपके सामने कोई भी ऐसी मीटिंग या कोई भी ऐसी चीज़ आती है जहाँ पे आपको अपना टाइम देना पड़ेगा ना, तो वहाँ पे आपके दिमाग में हमेशा ही एक चीज़ घूमेगा कि मेरे पास इतनी ही चीज़ें हैं हाँ बोलने के लिए। फिर आपका डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव हो जाता है, आप फालतू के लिए किसी भी चीज़ के अंदर नहीं जाते हो। देखो, रूल सिंपल सा है, जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो उसी में जाओ, जिसमें नहीं है नहीं जाओ। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो इसके लिए टिप नंबर 8, क्रिएट अ बजट फॉर सेइंग यस। डिसलाइक मार साले को, डिसलाइक मार। हम किसके साथ घूमे, तेरे को क्या बे? Before commenting such things in the comment section, please listen me out carefully. Choosing a circle wisely doesn't mean kicking out your friend in the existing circle of yours, or just restricting your time span with the people who really matter for you. It simply means getting a new friend accountable to each and every task that you do. For example, if I want to study for my semester exams that are coming next month, and I want to study 4 hours every day through which I can complete my entire syllabus, then I get a friend who already does that job effectively of studying 4 hours a day and who already knows a lot about the academia that is going to come in the semester exams. Now this will not only help me to improve my academics a lot, this will actually increase the probability of me doing the task because of the high accountability rate that I have for that person. तो चलो अब मूव करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर, जिसका नाम है एनालाइजिंग योरसेल्फ। अब देखो यार, बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि तुमसे ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं होंगी, एक बार में तो बिल्कुल नहीं होने वाली है। कुछ चीज़ों में तुम फेल हो गई, ठीक है, और उस टाइम पे तुम्हारे ब्रेन का एक नॉर्मल टेंडेंसी ये होगा कि वो तुम्हें क्विट करने के लिए बोलेगा, क्योंकि तुम अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर जा रहे हो। अब देखो, वो टाइम होगा थोड़ा सोचने का, थोड़ा ख़ुद को एनालाइज करने का कि गलती कहाँ पे हो रही है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर तुम्हारे पास वीक में फ्री टाइम बचता है तो एक संडे को 1 से 1.5 घंटे का एक सेशन लगाओ, या फिर अगर वीक में टाइम नहीं बचता तो फिर हर एक मंथ पे 1 से 1.5 घंटे का एक सेशन लगाओ, जहाँ पे तुम बस अपने मिस्टेक्स को लिख रहे होगे। उससे क्या होगा, प्लान तुम्हारा बेटर होते जाएगा। जो तुम प्लान बनाओगे, जो तुम डेडलाइन बनाओगे, या फिर जो तुम यस कहने का बजट था, ये सारी चीज़ें वो बेटर होते जाएंगी धीरे धीरे, और उनमें आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ होगा। फिर अब देखो यार, एनालाइज करने के लिए ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, बस एक कॉपी का पेज उठाओ और तुमने जो अपना रूटीन बनाया था, जो अपना स्केड्यूल बनाया था, जो चेकलिस्ट थी, उसको वापस एक बार देखो कितनी चीज़ें फॉलो हुई हैं और कितनी चीज़ें नहीं फॉलो हुई है। होता ये है ना कि इनिशियली हम लोग जोश जोश में आके एक ऐसा रूटीन बनाते हैं जिसको फॉलो करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। तो उससे बेटर क्या है, अपने आप को थोड़ा सा समझो और समझो, थोड़ा फ्री टाइम दो, थोड़ा ढील दो अपने आप को, थोड़ा एन्जॉयमेंट का भी टाइम दो अपने आप को, और अपने प्लान को बेटर बनाते जाओ। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, तुम्हारा प्लान बेटर होते जाएगा, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती जाएगी। सो इसका लॉन्गर रन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इवन अगर हो सकता है शॉर्टर रन में ज़्यादा फ़ायदा नहीं दिखे, बट लॉन्गर रन में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है इसके। सो अनदर इंपॉर्टेंट टिप, एनालाइज योरसेल्फ वंस इन अ वीक और वंस इन अ मंथ इन विच यू आर कंफर्टेबल। मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि पहले तुम स्टार्ट करो एक वीक में खुद को एनालाइज करना, फिर तुम एक मंथ की तरफ मूव ऑन कर जाओ, क्योंकि इनिशियली जो एफर्ट डालना होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा। सो इन विच यू आर कंफर्टेबल, डू दैट। और इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट। The habits that are rewarded tends to get repeated, and the habits that are punished tend to get perished. This is a small quote from James Clear from the book Atomic Habits.
It simply means if you reward yourself for every tick in the to-do list, then that small dopamine shot that you get from every tick drives you through the entire day. And reward yourself for every day you complete all the tasks present in the to-do list. For example, if I have completed each and every task that I have mentioned to do or I have planned to do in that certain day, I will order a favorite meal from my favorite restaurant. But keep this in mind, don't make it too easy because this will hamper both your health and your pocket. After JEE exams, we took a break of a couple of days, but we ended up falling into slump of not doing anything the entire day, and we ended up wasting a lot of time. And no matter how much we tried hard of coming out of those vicious circle of not doing anything and unproductivity via brute force, we were unable to do so. And we found out that this problem was not uncommon. This was a problem that was faced by a huge number of our batchmates. So we learned a lot of tips, tactics, tricks and time management techniques from various books, blogs, articles and various other sources to improve our overall productivity and actually devote time to the things that matter for us. बहुत ज्ञान चोदा, बट लौंडों की बात में दम तो है। क्या बोलते हो? कर दें सब्सक्राइब? कर दें? कर ही देते हैं।